میری کی طرف سے تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ اس سے پہلے کہ ہم ابتدائی دعا کریں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، جنہوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا، اور اس سب باتوں سے بڑھ کر ہم شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کا، جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے، جو ہمیں اکٹھا بیٹھنے کا فضل دیتا ہے، اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس پورے ماحول کو، اس پورے عبادت کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں گے، شکر گزاری کریں گے جتنی جانیں آ چکی ہیں اور جو آنے کو ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے، سنجیدگی اختیار کریں گے اور پورے ماحول کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر ابدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرا شکر، تیری تعریف و تیری تمجید کرتے ہیں باپ، کیونکہ تو ہی تعریف و تمجید کے لائق، تو بلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ خدا، اے خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں زندگی اور زندگی کے تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اس زندگی کے لیے، خدا صحت و تندرستی کے لیے، ہر اس برکت کے لیے خدا جو تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے، اس کے لیے تیری شکر گزار کرتے ہیں خدا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہم اے خدا تیرے شکر گزار ہیں تیری اس بیش بہا محبت کے لیے خدا، جو تو ہم سے رکھتا ہے اے خدا۔ ہم تو کبھی تجھے بھول جاتے ہیں یا بھول سکتے ہیں، لیکن اے خدا تو ہمیں کبھی بھولتا نہیں ہے اے خدا۔ تو نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں خدا، تو ہم سے محبت کرتا ہے خدا۔ تو نے اپنی محبت کا ثبوت اس صورت میں دیا کہ تو نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو ہمارے لیے خدا قربان کر دیا، تاکہ خدا ہم نجات پائیں اور کثرت سے پائیں خدا۔ تیری اس بیش بہا محبت کے لیے، تیری وفاداری کے لیے خدا تیرے شکر گزار خدا۔ اور اے خدا تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، تو سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں خدا۔ تو نے کہا ہے 2 یا 3 جہاں بھی میرے نام سے اکٹھے ہوں تو وہاں موجود ہوتا ہے۔ اے خدا ہم 2 یا 3 نہیں ہیں، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں تیرے حضور اکٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم اے خدا ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن اے خدا تیری حضوری میں اے خدا ہم اکٹھے ہوئے خدا۔ تیری حضوری میں ہم ایک جماعت کی صورت میں اکٹھے ہیں خدا۔ ہر ایک جان کو، بہن کو، بھائی کو، بچے کو اے خدا، جتنے بھی لوگ اے خدا اس وقت اے خدا ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے خدا۔ اور اے خدا تیری منت کرتا ہوں اے خدا اس نیٹ ورک کو اسی طرح بحال رکھنا اے خدا، کوئی بھی اے خدا نیٹ ورک کی وجہ سے ہم سے ڈسکنیکٹ نہ ہو، اور اے خدا ہم سب مل کر اے خدا تیرے نام کو جلال دیں۔ تو قادر مطلب ہے اے خدا، پورے ماحول کو اے خدا تیرے ہاتھ میں سونپا اے خدا۔ اے خدا ہر ایک گھرانے کو جہاں وہ بیٹھے ہیں، ان گھروں کو اے خدا تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ تیرے پاک فرشتوں کے پہرے وہاں قائم ہو جائیں اے خدا، اور اے خدا تو اپنے اے خدا لوگوں کی حفاظت کر، ان کی رہنمائی کر خدا۔ جتنے آنے کو ہیں خدا انہیں بھی جلد سے جلد آنے کا فضل دے، تاکہ اے خدا ہم سب مل کر تیرے نام کو جلائیں خدا۔ اپنے آپ کو اے خدا تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں اے خدا، جو تو نے مجھے یہ خدمت سونپی ہے خدا، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور اے خدا تیری منت کرتا ہوں اے خدا تو مجھے اپنی شان کے مطابق الفاظ استعمال کرنے کا فضل دے خدا۔ اے خدا ہم بہت چھوٹے ہیں، لیکن اے خدا تیرا فضل ہے جو تو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں تو نے بنا لیا ہے خدا۔ یہ تیری محبت ہے خدا۔ اے خدا ہمیں اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ خاص طور پر یہ پورا گروپ اے خدا اسی مسیحی محبت میں بڑھتا جائے، اور تیرے اے خدا کلام کو پھیلانے میں اے خدا پیش رہے۔ اے خدا اس پورے گروپ کو برکت دے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے خدا۔ پوری عبادت وہ اے خدا تیرے ہاتھوں میں سنتے، شروع سے آخر تک تو ہمارے ساتھ رہنا، ہمارا حمد و ثنا کرنا تجھے پسند آئے خدا۔ اور اے خدا
तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, जो भी बच्चे बहनें भाई है खुदावन तेरी हम्दो सना करने को है खुदावन, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, उनके होंठों का इस नजरानों को तू कबूल करना है खुदावन। ऐ खुदावन उन्हें रूह और सच्चाई से खुदावन हम्दो सना करने का फजल दे। दुआ को सुन और कबूल फरमा, मसीह यीशु का वास्ता देके मांगते हो, आमीन। इससे पहले कि हम हम्दो सना की तरफ बढ़ें, मैं कलाम का एक छोटा सा हिस्सा चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ज़बूर नवीस 100 ज़बूर में कुछ यूं फरमाता है, ए अहले जमीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा हो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावंद की हम्दो सना हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम जब उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं तो हमें गाते हुए हम करते हुए उसकी हजूरी में आना चाहिए। आए हम अपनी हम्दो सना का आगाज करते हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ अमनदीप से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे, उसकी हम्दो सना करेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने माइक म्यूट रखें ताकि उनकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बच्चिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मूं चो तेरे गीत जशु कदे भी गौंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज कदे बजाउंदा ना, मूंहों कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी बार डिगिया हाँ तू मैनू चुकिया ए, दिंती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए। जिन्नी बार डिगिया हाँ तू मैनू चुकिया ए, दित्ती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए। हाँ मेरे दुख तू सहंदा ना, कि तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लैंदा ना कि तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मूंह चो तेरे गीत जशु कदे भी गौंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज कदे बजाउंदा ना, मूंहों कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। लखां ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हाँ, किन्ने ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हाँ, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं परदा हाँ, रोज हाँ मैं परदा हाँ, तेरे सामने बहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी,
ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी बार भी डिकिया ਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहें। सिस्टर ने बड़ा प्यारा गीत खुदा की हम्दो सना में गाया, मैं बचिया रहंदा ना अगर तेरी दया ना होंगी। बेशक अगर उसकी करम की नजर हम पे ना हो तो हम बच नहीं सकते। अगर हम अपने गुनाहों से बचकर उस तक पहुंचना चाहें तो ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ उसका फजल है कि उसकी मोहब्बत है कि वो हमें बचाए रखता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। आए हम हमदोसना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई ऐजक से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनके हमदोसना करेंगे। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने माइक म्यूट करके अपने घरों में खुदा उनकी हमदोसना करें भाई के साथ मिलकर। उनका शायद नेट चला गया है आसफ। ओके हाँ भाई जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा बाजी नीलम से कि वो हमदो सना में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली,
तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। बड़ा प्यारा गीत आपने गाया, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। आए हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ते हैं। मैं कंफर्म करना चाहूँगा, अगर बेटी निदा या बहन सानिया में से दोनों में से कोई भी मौजूद है हमारे साथ। मेरे ख्याल में से दोनों में से कोई भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो अगर कोई भी ख्वाहिश रखता है कि वो खुदावन के नाम को जलाल दे, उसकी हम्दो सना करे, तो एक गीत गाने का वक्त है हमारे पास। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके खुदावन की हम्दो सना में हमें लीड कर सकती है। मैं गा देती हूँ। अमनदीप जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदाई आली जिमें गुम्मी किसे पेड़ नू, लभदाई आली जिमें गुम्मी किसे पेड़ नू, करता ओ इंच मेली पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जामा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। जिथे भी मैं जामा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां नाल करां ओदा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल करां ओदा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लाउंदे जावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लाउंदे जावांगे। लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा, लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा। ओही साडा सुर नाल ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोला,
मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया खुदा की हम्द व सना में। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। बेशक जब हम खुदावन पे ईमान रखते हैं कि वो हमारे साथ है, तो वो हमें हर वक्त संभालता है। वो हमें कभी किसी जगह अकेला और तन्हा परेशान हाल में नहीं छोड़े। ये उसका वादा है कि वो हमारे साथ रहेगा, और वो अपने वादों का सच्चा है। वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। और 23 ज़बूर में लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो जब हमारा चुपान वो है, तो हमें किस चीज की कमी होगी। वो हमें हर वक्त संभालता है। और आगे 27 ज़बूर में लिखा है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। मुसीबत के वक्त तो अपने शामियाना में मुझे पोशीदा रखेगा। ये वो हमें संभालता है हर हाल में। ये हम हैं कि हम कमजोर पड़ जाते हैं ईमान में, वो कभी हमें छोड़ता नहीं। खुदा को बरकत दे बहन जी। खुदा अपने नाम और अपने जलाल के लिए आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम खुदावन की आवाज को सुने और उसके कलाम को समझें, अपने आप को तैयार करें उसके कलाम को सुनने के लिए, और इस हम्द व सना के लिए शुक्रगुजारी करें। मैं दरख्वास्त करूंगा बहन सुरैया से कि वो एक इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और बहन को बहन शाहीन को खुदा उनके हाथों में सौंपें कि जो आज का कलाम हमारे साथ शेयर करने को हैं, वो खुदा उनका रूह उनकी रहनुमाई करें। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। और शिंदर खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ है बाप आसमानी। इसलिए मैं बाप हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं बाप, तुझे सराहने के लिए, तुझे ऊंचा करने के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए, तेरी प्रस्तुति तेरी तमजीद करने के लिए, तेरे सिजदे के लिए खुदावन, तेरी बादशाही को वुसअत देने के लिए बाप, और दुश्मन की बादशाही को सुकड़ने के लिए बाप, तो हम यहाँ उसको तो कम करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी सिताइश करते हैं जलाली पिता और रब्बुल फराज इसराइल का कदूस। तो इसलिए मैं बाप सारी प्रस्तुति के लिए शुक्रगुजार हैं। इसलिए मैं बाप अब हम जब कलाम के अगले महल्ले में बढ़ रहे हैं, तो अब आप हम तेरी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को शिनवा करते हैं, तब अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तेरी हुजूरी में पेश करते हैं, ताकि अब आप हम तेरे आप खाली होते हुए बाप हम अपने आप को तेरे कलाम से भर सके, तेरी बातों से भर सके खुदावन। अब आप आसमानी तेरी दिल की बातें जो तू हमसे करना चाहता है आज तू हमसे करे, और हम अब तेरे दिल की बातों को अब हम सुन सके, बात तेरी बंदी के रहनुमाई से अब आप तेरा शुक्र अदा बाजी सुरैया का शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। आए हम अपने सरों को झुकाए रखेंगे और दुआ करेंगे। खुदा कादर अब्दी के बाद सलामती के शफात। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तेरी हम्दो सना के लिए जो हमने तेरी हम्दो सना मिलकर की है खुदा, ये तुझे पसंद आए, तेरे हुजूर है खुदा बखूर के माने पहुंचे खुदा। अब जबकि खुदा हम तेरे कलाम को सीखने को हैं खुदा, तेरी बंदी को एक खुदा, तेरी बेटी को एक खुदा तेरे लहू छुपा देते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा। अपनी बेटी को एक खुदा कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, अपने
اے خدا वेद اے خدا अपनी बेटी पर अयां करता है खुदा मुझे तेरा कलाम आज हमारे साथ शेयर करने का वो है खुदा वो खुद नहीं बल्कि खुदा तेरा पाक रूह उनमें से होकर हमसे कलाम करे खुदा हम तेरे कलाम को समझने वाले उसके हैं खुदा तो हमें सुनने वाले कान दे खुदा और समझने वाला दिल दे खुदा और ए खुदा ऐसा ना हो कि हम खुदा तेरे कलाम को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें बल्कि खुदा हमें फजल दे के हम उसके ऊपर अमल करें खुदा उसे समझें खुदा अपनी जिंदगी में उसमें ए खुदा अमल करते रहें और ए खुदा दर्जा बदर्जा ए खुदा बेहतर होते जाए खुदा ताकि ए खुदा तुझे पसंद आए खुदा कादर मतलब बाप ए खुदा अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करना खुदा कसरत से इस्तेमाल करना है खुदा दुआ को सुनो और कबूल फरमा इसी इसको आशा देके मांगते हो आमीन। आज का जो कलाम का हिस्सा हम तिलावत करने को हैं वो है रेवोल्यूशन चैप्टर 4 और मैं दरख्वास्त करूंगा बहन अंजना से कि वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। बाजी शाहीन प्लीज आप रहनुमाई कीजिएगा कि कितना हिस्सा पढ़ना है, कौन सी आयत पढ़नी है। जी ठीक है। हाँ, जी अंजना आप चैप्टर 4 उसकी ना पहली आयत से आप 7 आयत तक पढ़ें क्योंकि मेरा ख्याल है हम ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। हाँ जी मेरा ख्याल ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी ठीक है। चैप्टर 4 है ना बाजी। हाँ जी हाँ जी। रेवोल्यूशन ओके। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜੋ ਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਤੂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਤੂ ਵਹਿਕੜੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜੰਤੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜੰਤੂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ है। आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले छोटी सी दुआ करेंगे रोटी और पानी के लिए और फिर हम जिनको नहीं पता जो नए आए हैं हम रोज ही अपने पास जैसे कहते पानी का ग्लास और रोटी रखते हैं तो आप भी अगर रखना चाहें मतलब जैसे खुदावन के जैसे पाक मेज में हम शामिल होते हैं रोज जिस तरह के अमाल की कलीसिया रोज ही रोटी तोड़ा करती थी तो हमने भी ये सिलसिला खुदावन की रहनुमाई से शुरू किया है तो आप अपने पास रखें और हम उसको इकट्ठे मिल के पानी को पिएंगे जो कि खुदावन यीशु के लहू में तब्दील हो गया है और रोटी जो कि खुदावन यीशु मसीह का बदन है उसको हम जब इकट्ठे हों तो जिस्मानी तौर पे भी जैसे कह लेंगे कलाम जो है खुदावन का लेते हैं तो रोटी और पानी को भी हम लेंगे। तो मैं छोटी सी दुआ करूंगी तो हम फिर इसको इकट्ठे लेंगे पानी को पिएंगे और रोटी को खाएंगे। हालेलुया हालेलुया जीसस ओरे शिक्रिया कात्रिया रेबे शेरे बेरे बेरे ओरे बे शिक्रिया कात्रिया रेबे संदरा संदरा शेरे बेरे 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 ओरे सियारा शिक्रिया कात्रिया 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 हालेलुया हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो खुदा
कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही खुदावंदों का खुदा है, तू ही बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, हम अपने सरों को तेरे हुजूर झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरा मसा हमारे पर ठहरा हुआ है। खुदावंद तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद मीटिंग्स के शुरू से अब तक तूने हमें संभाला और आगे भी खुदावंद तू इस मीटिंग को चलाएगा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, खुदावंद तूने हमारी खातर लहू को बहाया। खुदावंद हमारी इस खातर सलीब पे जान दी, ताकि हम इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन तकलीफों से, ये गुनाहों से, खताओं से खुदावंद निजात पा सके। खुदावंद और आज़ादी को, बहाली को, शफा को खुदावंद यीशु तुझ में से रिसीव करें खुदावंद। और अपने बाप को जो तूने हमें हक बख्शा कि हम भी उसको अपना बाप कह सके। खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुर्बानी के लिए। खुदावंद तेरे इस सारे प्लान के लिए कि खुदावंद तूने हमें बचा लिया, तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया, तूने हमें निजात दी। खुदावंद तूने उन सारी लानतों से खुदावंद हमें निकाल लिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने वादा किया कि खुदावंद अगर हम तेरे साथ वफादारी से तेरे हुक्मों पे अमल करेंगे, तेरी शरीयत पर अमल करेंगे, तो खुदावंद खुदा ये लानती बीमारियां हमारे दरमियान नहीं आएंगे। खुदावंद आज खुदावंद हम तेरे उस कलाम पे अमल कर रहे हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, सब बहन भाई खुदावंद मिलकर तेरी हुजूरी में आए हैं और खुदावंद हम तेरे उस कलाम पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हम तुझ में पैवस्त होना चाहते हैं, हम तेरे करीब आना चाहते हैं। खुदावंद यीशु तो हमारी मदद कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद आज खुदावंद जब इस पानी को लिए, इस रोटी को खाएं, तो खुदावंद हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, वो लानते, खुदावंद वो बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम से जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, जिन्होंने हमारे कहीं ना कहीं सोचों को गंदा किया है। खुदावंद खुदा हमारे जिंदगियों में वो डिप्रेशन को लेके आई है किसी तरीके से। खुदावंद हमारे उसने फाइनेंस को बांधा हुआ है। खुदावंद हमें किसी भी तरीके से उसने जकड़ा हुआ है। खुदावंद खुदा कहीं पे भी खुदावंद उसने हमारे काम रोके हुए हैं कि हम तेरी तरफ बढ़ नहीं सकते। खुदावंद तेरे कलाम को उस तरह से समझ नहीं सकते, उस पे अमल नहीं कर सकते। आज वो सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा आज वो सारे जुए टूट जाएं, खुदावंद हट जाए हमारी जिंदगियों से। और खुदावंद हम तुझ में खुदावंद एक दर्जा और आगे बढ़े, एक दर्जा और पाकीज़गी में तेरी तरफ कदम बढ़ाएं। खुदावंद खुदा यीशु के नाम से। खुदावंद जब भी इस पानी को हम लें जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गया, तो खुदावंद ये तेरा पाक, तेरा पवित्र, तेरा कुदरत वाला, तेरा ताकत वाला लहू जहाँ जहाँ से हमारे बदन के अज़ा में से गुजरे, खुदावंद वहाँ वहाँ हमारे बदन निजात पाते जाएं, बहाल होते जाएं, आज़ाद होते जाएं, पाक होते जाएं खुदावंद यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है, तो क्यों कि खुदावंद तेरा पाक कलाम फरमाता है कि तू पाक लोगों को लेने आ रहा है, ताकि खुदावंद यीशु हम रोज 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 तुझ में पाक होते जाएं, तुझ में पवित्र होते जाएं। खुदावंद यीशु खुदावंद हम पहले जैसे ना रहे, हमारी जो पुरानी इंसानियत है हमारे अंदर से खत्म होती जाए और खुदावंद हमारा मिजाज तेरी मानिंद बनता जाए यीशु के नाम से। खुदावंद जिस जिस तरह खुदावंद तू पाक है, खुदावंद उस तरह से हमें भी ये तेरा लहू, ये तेरा बदन जो हम लें, हमें वो पाक और पवित्र बनाता जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद इस छोटी सी जमात को, खुदावंद इस ग्रुप पे खुदावंद तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी ठहरी रहे खुदावंद यीशु के नाम से। तो हमें पाक बना दे, क्योंकि खुदावंद तू उन लोगों को लेने आ रहा है यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा आज वो सारे गुनाह, सारी खताएं कहीं पे भी हमने बोलने से, देखने से, सुनने से किसी भी तरीके से खुदावंद तुझे नाराज किया है, तुझे दुख दिया है खुदावंद खुदा, इन बदनों को शैतान को दिया कि वो इसको इस्तेमाल करे यीशु के नाम से। आज वो सारे पाप हमारे धुल जाएं, वो सारी खताएं धुल जाएं यीशु के नाम से, खत्म हो जाए हमारे अंदर से। हमारे घर खुदावंद उन सब जो भी इस ग्रुप में है खुदावंद सबके घरों को
खुदा उन बुनियादों से लेके छतों तक खुदा एक एक चीज को, एक एक इंच को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे लहू से धो के पाक और साफ कर देती हूँ। कोई भी अबलीसी कुव्वतें हमारे घरों में ठहरने ना पाए, न हवाओं में न फिजाओं में। खुदा यीशु तेरे लहू को लगा देती हूँ। खुदा यीशु के नाम से ये शैतानी कुव्वतें, खुदा जो भी अबलीसी कुव्वतें हमें दुख देती हैं, हमें बीमार करती हैं, खुदा हमें तुझसे दूर लेके जाने की कोशिश करती हैं, हमें नापाक बना देती हैं, यस्सु के नाम से आज मैं उनको हुक्म देती हूँ, हम सब बहन भाई मिलके, कि वो हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से निकल जाए यस्सु के नाम से। और खुदावंद तेरा मसा हमारे घरों के ऊपर, हमारे ऊपर यस्सु के नाम से ठहरा रहे खुदावंद। और अबलीसी कुव्वतें हमसे यस्सु के नाम से डरती और कांपती हुई हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से निकल जाए यस्सु के नाम से। और खुदावंद हम तुझ में और ज्यादा पाक और पवित्र बनते जाए यस्सु के नाम से। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप ईमान से इस पानी को पिए जो कि अब खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया है, और इस रोटी को जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर तोड़ा ताकि हम शिफा पाए, हम आजाद हों, हम बहाल हों। ईमान से पिए इस पानी को। थैंक यू जीसस, खुदा तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड जी। सारों को जो बाद में आए हैं, हम आज उस दिन हमने चैप्टर जो 4 है, चौथा चैप्टर जो था वो शुरू किया था, काशफा की किताब, चौथा बाब। और हमने थोड़ा थोड़ा सीखा था। पहली आयत और दूसरी आयत पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि खुदाउन का बंदा जो यूहन्ना आरफ, उसको खुदावंद ने कहा कि ऊपर आ जा। उसको नरसिंगे से की आवाज जो थी वो सुनाई दी थी, और उसने उसको एक दरवाजा खुला और वो ऊपर पहुंचा दिया गया, यूहन्ना आरफ जो था। और फिर हमने देखा कि उसने वहां पे जाके ऊपर जो रोया देखी थी, और जो जो कुछ उसने देखा उसने इस चैप्टर 4 चैप्टर में उसने बयान किया है। और इसको हम इस तरह सीखना शुरू किया था हमने कि जो जो कुछ उसने देखा, यूहन्ना आरफ ने, उसने जो जो जहाँ पे कह लें कि बैठे हुए थे, या वो एक तरतीब से देखा। और हम भी उसको थोड़ा कोशिश करेंगे कि तरतीब से सीखें कि और हमने सीखा था कि ये चौथे चैप्टर को, यानी काशफा की जो किताब है उसको इस तरह तरतीब दिया गया है कि जो पहला चैप्टर है उसमें तारफ करवाया खुदा यीशु मसीह ने अपना, यानी वो जलाली है, उसमें हमने देखा सीखा था कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक जलाली सूरत में यूहन्ना आरफ को नजर आया था। यानी जैसे वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था जो जमीन पे जब उसने देखा, अब जब उसने खुदा यीशु मसीह को देखा तो एक सरदार काहिन की सूरत में देखा, है ना, एक जलाली सूरत में देखा। उसकी आंखें शोला की तरह थी, उसके बाल जो थे उसने देखा कि सफेद थे। तो इस तरह उसने जलाली सूरत में खुदा यीशु मसीह को देखा। खुदा यीशु मसीह ने इस तरह उसके ऊपर अपने आप को जाहिर किया, है ना। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा और तीसरा जो चैप्टर था वो हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह 7 कलीसियों से, 7 चर्चेस से बातचीत कर रहा है या उनको पैगाम दे रहा है। और हमने सीखा कि 7 फरिश्तों को खत लिखा गया, जो कि हमने सीखा कि वो फरिश्ते नहीं बल्कि खुदा उनके खादम हैं, जो 7 कलीसियां हैं, उनके खादमों को खुदावंद ने जो पैगाम था भेजा कि, और पैगाम यानी वो हमारे यानी अब जो हम खुदावंद यीशु मसीह की कलीसियां हैं, चर्च है, या हम फर्दन फर्दन भी जो हैं, खुदावंद मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि तेरे अंदर या इस चर्च में ये वाली खराबी है कि उसमें जैसे कह लें बाल की तालीम है, उसमें नकेलियों की तालीम है, उसमें यानी अभी हम बुत परस्ती में पड़े हुए हैं। तो इस तरह हमने थोड़ा सीखा कि खुदावंद को क्या-क्या शिकायत है मुझसे और आपसे
या चर्चिस में या कलीसियाओं में, वो खुदावंद ने बताया, फिर खुदावंद ने उसका हल भी बताया कि ये खराबियां हैं और तू तौबा कर, है ना। और खुदावंद ने कहा कि अगर तू तौबा करेगा तो फिर तुझे ये वाला अजर जो है ये मिलेगा, ये रिवार्ड जो है वो मिलेगा आसमान पे, है ना। यहाँ पे और हमने ये भी सीखा कि ना सिर्फ आसमान पे हमें अजर मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, बल्कि उसका कुछ-कुछ हिस्सा जो है कह लें कि ज़मीन पे भी मिलेगा। तो ये हमने सीखा और फिर अभी हम आगे सीखेंगे कि जो चैप्टर 4 से लेके 5 है, इसमें जो मुकद्दसीन हैं, जो खुदावंद के पवित्र लोग हैं, जो खुदावंद के पाक लोग हैं, उसके बारे में जो यूहन्ना आरफ़ है, वो जो रोया है, वो देख रहा है कि मुकद्दसीन जो हैं वो किस-किस जगह पे हैं, या उनकी इसको इस तरह हम कह लें टाइटल जैसे कह लें कि देंगे कि आसमान पर मुकद्दसीन का मकाम, जो उनकी जगह है आसमान पर। यानी हम सब ये तो जानते हैं कि जी सब आसमान पे जाना है हमने, है ना? आसमान पे जाना है। लेकिन हम इस रोया से ये भी सीख रहे हैं कि आसमान पर या खुदावंद की हज़ूरी में या खुदावंद के जहाँ है खुदावंद यीशु मसीह का और खुदावंद बाप का तख्त लगा हुआ है, वहाँ पे भी पोज़ीशन है, वहाँ पे भी सबकी जगह है, सब एक ही जैसे कह लें भीड़ की तरह नहीं बैठे हुए सब। ये हम देख रहे हैं, है ना? कि खुदावंद का तख्त है और इर्द-गिर्द जो है वो तख्त लगे हुए हैं बुजुर्गों के, 24 बुजुर्गों के, और फिर हमने सामने भी देखा यानी ये खुदावंद के बंदा यूहन्ना आरफ़ ने कहा कि उसके सामने क्या है, उसके इर्द-गिर्द क्या है तख्त के, है ना? तो इसलिए ये सबकी जगह जो है इस चैप्टर में, चौथे और 5वें चैप्टर में मुख्तलिफ जो जगह है या मुख्तलिफ मकामात हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे, है ना? इस चैप्टर को इस तरह 2 चैप्टर को किया, फिर छठा और 6 से लेके 11 तक जो है चैप्टर, उसमें हमने सीखा कि जो अम 7 साला मुसीबतों का दौर होगा यहूदियों के ऊपर, उस नुक्ता नज़र से इस चैप्टर में बयान किया गया है। इस चैप्टर में रोया जो है यानी खुदावंद के बंदा को खुदावंद ने दिखाई, और जो 12 से 19 चैप्टर है, उसमें जो मसीही कलीसिया है, खुदावंद यीशु मसीह की अ, उसमें उनसे बातचीत की गई है या उस नुक्ता निगाह से 7 साला मुसीबतों का दौर जो है, उसके बारे में उसने रोया देखी खुदावंद के बंदा ने, है ना? और 20 से 22 चैप्टर जो है, वो 1000 साला बादशाही के बारे में बात करता है। जूझ-मजूझ की लड़ाई जो है, उसके बारे में हमसे बात करता है। सफ़ेद तख्त-ए-अदालत और अबदी जो बादशाही शुरू होगी, उसके बारे में बातचीत जो है, वो की जाती है ना? तो ये चैप्टर जो है, इस तरह कह लें उनको डिवाइड किया गया है, इस तरह से उनके कह लें तक़सीम किया गया है या उसके बारे में बातचीत हुई है ना? तो हमने सबसे पहले जो था वो सीखा कि जब खुदावंद का बंदा आसमान पे उठाया गया, तो उसने खुदावंद के तख्त को देखा, है ना? और ये हमने देखा कि उस तख्त का हमें बाइबल में से एक कह लें हवाले मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि वो आसमान पे है। और खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के बारे में भी हमें पता चलता है, ये हवालों से हमने थोड़ा सीखा था कि उसने देखा कि आसमान पर खुदावंद का तख्त लगा हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह का भी ये हमने हवाले पढ़े थे, इसलिए आज वो हम हवाले तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं थोड़ा-सा जैसे कह लें आपको पीछे जो रवीन जो है वो थोड़ी की है, कि खुदावंद के तख्त के बारे में हमने सीखा था जो कि क्या है दरमियान में लगा हुआ था और उसके अ, यानी खुदावंद यीशु मसीह का और खुदावंद पाक का तख्त, और फिर हमने देखा कि खुदावंद पाक रूह जो है यानी अ, 7 जो चिरागदान हैं, वो भी हमने देखा कि तख्त के ऊपर है, यानी तख्त के ऊपर है। तो वो
हमें ने सीखा कि वो 7 आँखें और 7 जो सींग हैं और वो चिरागदान जो है, वो उसके बारे में हमने सीखा कि वो तख्त के ऊपर है। और फिर हमने सीखा था कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ओवरकमर हैं, जो गलबा पाएँगे, जो गालिब आएँगे, है ना? वो क्या हैं? वो मेरे साथ, ये हमने हवाला पढ़ा था मुकाशवा 3 बाब उसकी 21 आयत में, कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। तो ये हमने थोड़ा सीखा था कि ये लोग जो हैं, वो तख्त के ऊपर हैं। यानी खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद बेटा अ, और जो ओवरकमर हैं, जो गालिब आएँगे, जो कि जिनको यानी उनको भी बेटा कहा गया है। यानी ये आगे चल के हम थोड़ा-थोड़ा इसको और ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि ओवरकमर है। यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो भी तख्त के ऊपर होगी। यानी ये 4 लोगों के बारे में हमने सीखा, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदावंद पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, यानी जो ओवरकमर है, जो आर्मी है खुदावंद की, जो लश्कर है, वो तख्त के ऊपर होगा, है ना? ये हमने थोड़ा सीखा था। आज थोड़ा-सा ही इस तख्त के बारे में और हम बात करते हैं। ये मुकाशवा 4 बाब और उसकी 3 आयत में जहाँ पे लिखा है तख्त के बारे में कि वो धनक की तरह है। और किसी को अगर पता है कि धनक क्या है? कोई भी अगर धनक रेनबो। हम हाँ जी, प्रेज़ गॉड। तो ये हमें खुदावंद के तख्त के कह लें ऊपर या उसके चौगिर्द जो रोशनी सी नज़र आ रही है, जैसे हमने उस दिन भी देखा कि कुछ हमें खुदावंद का तख्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा, खुदावंद जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो रोशनी ही रोशनी है। खुदावंद का जलाल ही जलाल है, एक ग्लोरी है जो हमें नज़र आ रही है ना? कोई एक जो तख्त है, जो एक सूरत है, वो नहीं नज़र आ रही, एक रोशनी है, वो हमें नज़र आ रही है। और आज हम देखते हैं कि ये जो तीसरे आयत में हमने देखा कि वो ज़ुमुर्द की सी एक धनक सी जो नज़र आ रही है ना? तो ये धनक जैसा कि हमें पता चला कि जी हाँ, ये रेनबो है और अ, इसके बारे में जो धनक है ये किस चीज़ को पेश करती है? या इसका क्या मतलब है कि ये हमें खुदावंद के तख्त के ऊपर नज़र आ रहा है ना? तो इसके लिए एक हवाला जो है हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब, उसका 9 बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक हम पढ़ते हैं। और मेरा ख़्याल हमारे साथ अंजना है और अगर उर्दू में कोई भी हमारी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। मैं कर दूँ। जी, वफ़ा पैदाइश की किताब उसका 9 बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक हम पढ़ते हैं। जी कि बाजी ये मैं धनक क्या है? उसका मतलब क्या है? ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਨੁਕ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ नहीं, ये जो रेनबो का उर्दू में क्या कहते हैं? हम तो अच्छा रेनबो रेनबो हाँ जी, ये जो कलर नज़र आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, 7 येलो हाँ, रंगों वाली रेनबो, कौसे के 7 साथ रंगों वाली। अलग। हाँ जी। ਸਾਡੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ जी, सतरंगी पिंग ओके, ओके, हाँ जी, सतरंगी सॉरी। मैं पंजाबी का ये असल में लफ्ज़ ढूँढ रही थी। ओके, थैंक यू वफ़ा। जी। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और न कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ
اور وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین آمین جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تو یہ دھنک جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ 7 رنگوں کی طرح یہ نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ خداوند کے وہ عہد ہے، خداوند کے جو وعدے ہیں جو انسانوں کے ساتھ اور مطلب جو بھی زمین کے ساتھ خداوند نے کیے، وہ سارے عہد ہے۔ اسی لیے ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو وعدے کرتا ہے ان سے کبھی مکرتا نہیں، کبھی اپنے وعدوں کو توڑتا نہیں، وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے وعدوں کو ہمیشہ یا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ خداوند وعدہ کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے مکرتا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ورس میں لکھا ہوا ہے کلام میں کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کلام کو، ہے نا؟ تو اسی لیے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے جو عہد باندھا، خداوند نے جو وعدے کیے انسان کے ساتھ، خداوند جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں وفادار خداوند ہے۔ اس لیے یہ دھنک جو ہے کیا ہے، یعنی اس چیز کو پیش کری ہے کہ خداوند کی جیسے کہ لیں حضوری میں، خداوند کے تخت کے سامنے یا تخت کے اوپر یہ ہر وقت جو ہے ہمارے وعدے ہیں کہ وہ وفادار خدا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ یہ اس چیز کو پیش کریں کہ خداوند جو ہے وفادار خدا ہے، خداوند سچا خدا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ جیسے کہ لیں اپنے سامنے رکھتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ یا ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ خداوند نے جتنے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں یا اس کلام میں یا ہم کہیں کہ فردن فردن بھی ہم سب کے ساتھ جو خداوند نے وعدے کیے ہیں، آپ ایمان رکھیں کہ خداوند جو ہمارا خدا ہے وہ وفادار خدا ہے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ تو اس لیے یہ جھنک جو ہے یہ اس چیز کو پیش کرتی ہے جو خداوند کے تخت کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے نا۔ اور خداوند جو ہے وہ سچا خدا ہے اور وفادار خدا ہے۔ اور پھر جو 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تخت کے چوگرد 24 تختوں پہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ یا ان کے سروں پہ جو تاج ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے یا یہ کون ہے نا؟ اس کے بارے میں جو یہ رویا ہے خداوند کے بندہ نے دیکھی ہے نا۔ اس میں آگے چل کے ہم جو جیسے کہ اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا ہم بس تعارف کرائیں گے۔ تخت کے جو ارد گرد جو ہیں وہ 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا الگ تخت ہے۔ یہ دل کی شریعت سے پہلے کا زمانے کے جو ہمارے مقدسین ہیں، یہ ان کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کے سروں پہ جو تاج ہے۔ اس لیے اس کی مطلب ابھی صرف یہ ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بزرگ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی دولن ہے نا۔ تو بہت ساری اسٹڈی میں کہہ لیں یا بہت آپ نے بھی یہ مکاشفے کی جو کیا لیں تشریح کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں سے آپ نے تھوڑا سنا ہوگا کہ شاید یہ جو ہے یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی دولن ہے نا۔ تو لیکن ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اس لیے یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 24 جو بزرگ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی دولن ہے، تو یہ خداوند یسوع مسیح کی دولن جو نہیں ہے، یا کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں
है ना। तो ये दुल्हन भी नहीं है, ये शागिर्द भी नहीं है। हमने देखा कि अ, जो गालिब आते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके तख्त के ऊपर, यानी जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है, जो अभी हमने मुकाशवा की किताब और उसका जो 3 बाब और उसकी 21 आयत में जो खुदावंद ने हमसे वादा किया, और फिर जो यूहन्ना की इंजील उसका महज़ 14 बाब है और उसकी पहली या दूसरी आयत में लिखा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो इसलिए जो ओवरकमर हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो उस तख्त पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। तो इसलिए कुछ लोग जो ये समझते हैं कि शायद ये खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है या वो शागिर्द हैं, तो जो शागिर्द हैं वो अगर हम देखें तो वो गालिब आए थे, वो ओवरकमर थे, है ना? तो इसलिए वो तो जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है, वो वहीं पे होंगे। तो इसलिए ये दोनों जो इस तरह की शायद तशरीह की जाती है, तो अगर हम कलाम के हिसाब से देखें और खुदावंद यीशु मसीह के वादे के हिसाब से देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि जो ओवरकमर है, जो गालिब आएँगे, वो मेरे साथ उस तख्त पे बैठेंगे, है ना? तो इसलिए ये वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते, है ना? तो ये कौन है? ये जो अ, जब शरीयत नहीं मिली थी, जैसे कह लें आदम से लेके खुदावंद के बंदा मूसा तक, जब तक अभी शरीयत जो थी अ, वो नहीं मिली थी, ये वो 24 बुजुर्ग हैं। आगे चल के और थोड़ा डिटेल से हम इसके बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम इसके आगे हम देखते हैं कि जो 5वीं वर्ष है मुकाशवा की चौथा बाब और उसकी जो तख्त के अ, उसमें हम देखते हैं कि बिजलियां और आवाजें और गरजे जो हैं वो पैदा हुई। तो ये किस चीज को पेश करती हैं? बिजलियां और आवाजें और गरजे जो हैं ये किस चीज को पेश करती हैं, है ना? तो पहले हम ये थोड़ा-थोड़ा सीख लें और फिर हम जो खुदा की ये जो बिजलियाँ हैं, बिजलियों की आवाज़ें जो हैं या गरजें जो हैं वो खुदावंद की कुदरत को और उसकी रास्त जो है अदालत उसको ज़ाहिर करती हैं। यानी बिजलियाँ जो हैं खुदावंद की कुदरत को, ताकत को, और वो रास्त है, वो पाक है। न वो अ, यानी अदलो इंसाफ से जैसे कह लें अदालत करता है, इस चीज़ को पेश करती हैं। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिरागदान हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। वो तख्त के सामने 7 चिरागदान देखता है, जो खुदा की 7 रूहें हैं। 7 चिरागदानों के बारे में हमने सीखा कि वो क्या हैं? वो 7 रूहें हैं, 7 चिरागदान जो हैं, जो खुदा की 7 रूहें हैं, वहाँ मिलकर एक यानी पाक रूह को तश्कील करती है और खुदा की कामिल सिफ़त को ज़ाहिर करती है। यानी 7 रूहें जो हैं, खुदावंद की कामिल जो सिफ़त है, उसको ज़ाहिर कर रही हैं। यानी खुदावंद जो है खुदावंद बाप, खुदावंद बेटा यानी तस्लीस को पेश कर रही है। और खुदावंद के जो खुसूसियात हैं, उसको पेश कर रही हैं, सिफ़तों को पेश कर रही है ये। रूहुल कुद्दस बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस को पेश करती हैं। चूँकि मसीह की दुल्हन अभी तक ज़मीन पर है और तख्त के सामने खुदावंद की खिदमत कर रही हैं और पाक रूह भी अभी तक कलीसिया के साथ है, जो कि मसीह की दुल्हन है। इसलिए उसे ऐसे अभी जो है, वो चिरागदानों से तशबीह दी गई है, जो तख्त के सामने है और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर जो है, बलौर की मानित है। तो ये जो शीशे का समंदर है, यानी चिरागदान का हमने देखा कि यानी ये खुदावंद की 7 रूहें हैं, 7 चिरागदान जो हैं और खुदावंद पाक रूह है, जो अभी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो ज़मीन पे है और खुदावंद पाक रूह, तो इसलिए ये चिरागदान की तरह इसको यूहन्ना आरफ़ ने, खुदावंद के बंदा ने अभी इस सूरत में देखा, क्योंकि अभी जो है खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो है और खुदावंद पाक रूह वो ज़मीन पे है, जब यानी उसने देखा। तो इसलिए उसने इस सूरत में चिरागदान की सूरत में देखा। तो उसके बाद उसने देखा कि शीशे का समंदर है। तो ये जो शीशे का समंदर है,
ये किस चीज को पेश करता है। इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, अंजना आप निकालना, मुकाशफा 6 बाब और उसकी 9 आयत। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 9 आयत। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮੀਨ। आगे भी पढ़ना थोड़ा सा। 8 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये जो रूहें हैं जो अभी ये हमने 9 आयत 6 बाब 9 आयत में पढ़ा कि जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के सबब से मारे गए, यानी शहीद जो हैं। और जो यानी ये खुदा उनके तख्त के सामने जो हैं, जो उसने देखा कि शीशे का सा समुंदर है। तो शहीदों के बारे में ये बात हो रही है। दुनिया की इब्तिदा से लेकर नए अहदनामे की कलीसिया के उठाने तक के शहीद जो हैं, ये उनकी बात हो रही है कि यानी यहाँ पे जो हमने ये वर्ष पढ़ी कि क्या है, कुर्बानगाह के नीचे, यानी कुर्बानगाह जिन्होंने अपने बदनों की, अपने जिस्मों की जो कुर्बानी दी थी खुदा यीशु मसीह की खातिर कह लें, और उससे पहले भी जो शहीद हुए, हमें पता है कि जो पुराने अहदनामे में भी हमारे जो नबी थे, खुदा उनके बंदे जो थे, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। तो इसलिए दुनिया के कह लें शुरू से लेकर तब तक, ये जब तक खुदा उनका बंदा रोया जो है देख रहा है, तो जो सारे शहीद हैं कुर्बानगाह, यानी कुर्बानी उन्होंने दी अपने बदनों की, है ना, किसी भी तरह से वो शहीद हुए, वो खुदा उनके यानी पुराने अहदनामे में से भी और नए अहदनामे में भी जो अभी तक हो रहे हैं शहीद और जो हो गए हैं, तो उन सब की जो रूहें हैं वो खुदा के बंदा ने देखी कि वो कहाँ हैं, कि उन्होंने शहादत पाई तो भी वो उस दर्जा तक पाक ना थे, मुकद्दसों के मर्तबा तक पहुंचे, मगर चूंकि उन्होंने दुख उठाया और कत्ल किए गए, इसलिए वो शीशे के समुंदर पर देखे गए। शीशे का समुंदर दुखों के जरिए से पाक होने को जाहिर करता है, यानी वो दुखों और तकलीफों आजमाइशों में से गुजरे, उनको अपनी जान जो है खुदा उनकी खातर देनी पड़ी, है ना। तो इसलिए वो शहीद हुए, तो इसलिए उनको कुर्बानगाह के पास खुदा उनके बंदा ने देखा, है ना। तो ये जो शीशे का समुंदर है जिसमें आग मिली हुई है, ये खुदा उनके बंदों ने जो मुसीबतें सही, जो दुख उनकी जिंदगी में आए, तकलीफें आई, और जिस तरह हम खुदा यीशु मसीह के भी शागिर्दों को देखते हैं, पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं, यसाया के बारे में भी हमें, मेरा आप सबको शायद पता हो कि उसको मारा गया था, और जिक्रिया के बारे में इस तरह वो खुदा उनके जो नबी थे उनको मारा गया था, शहीद हुए थे। तो इसलिए ये जो है ये उनकी बात हो रही है जो शहीद हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, मुकाशफा 15 बाब उसकी 2 आयत, यानी ये इस चीज को पेश कर रहे हैं, दुखों और मुसीबतों को। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। हाँ आमीन। जी, हाँ जी। तो इससे हमें और ज़्यादा कह लें वाज़िया जो है पता चल रहा है कि शीशे के समंदर जो है, वो असल में किस चीज़ को पेश कर उसमें यानी आग मिली हुई है। यानी दुःख, मुसीबतें, तकलीफ़ें, आज़माइशें जो थी अ, उनमें से गुज़रे जैसे कि जो 7 साला मुसीबतों का दौर होगा, वो जब हवान जो है वो सामने आ जाएगा और वो अपना बुत बनवा लेगा, है ना? तो जो वो चाहेगा कि इस बुत को सिजदा किया जाए, तो जो सजदा नहीं करेंगे, है ना? जो जैसे हमें पता है वो छाप नहीं लेंगे, तो उस हवान की जो है और उनको उस मुसीबत में से, उन दुखों में से, तकलीफ़ों में से गुज़रना पड़ेगा, है ना? और उनको अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये समुंदर जो है, शीशे का समुंदर जो है और आग जो है जिसमें आग मिली हुई है, वो इस चीज़ को पेश करती है। और इसके आगे ही अगर 15 ये जो चैप्टर है, आगे भी हम पढ़ें तो लिखा है कि वो मूसा का गीत गा रहे थे और बर्रे का गीत गा रहे थे। यानी 2 किस्म के लोग जो हैं यानी आगे जो हैं जो तख्त के आगे जो है इस शीशे का समंदर जो है इसको पेश कर रहे हैं। यानी जो पुराने अहदनामे के जो शहीद हैं सारे वो यानी वो मूसा का गीत गा रहे थे और जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं यानी जो बर्रे का गीत गा रहे हैं यानी खुदावंद यीशु मसीह का गीत गा रहे हैं, है ना? तो वो भी वहाँ पे होंगे यानी ये दोनों की बात हो रही है कि वो मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में से गुजरे और वो उन्होंने अपनी जान जो है थी खुदावंद की खातिर कुर्बान की। तो इसलिए 2 किस्म के लोगों के बारे में बात जो है वो हो रही है यानी शहीद हुए और उन्होंने उस बुत को सजदा नहीं किया और जो वो छाप थी वो नहीं ली और अगर वो नहीं लेंगे तो हम सबको ही मेरा हाल पता है ना कि अगर हम वो छाप ले लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने खुदा यीशु मसीह का इनकार कर दिया, है ना? तो लेकिन अगर वो छाप नहीं लेंगे, तो फिर वो जो हैवान है यानी वो एंटी क्राइस्ट जो है वो मुखालिफ़े जो मसीह है, वो क्या करेगा उनको कत्ल करवा देगा, उनको मरवा देगा। तो इसलिए वो क्या हो गए मसीह की खातिर कुर्बान हो गए और वो मुसीबतों में से गुज़रे, वो तकलीफ़ों में से आज़माइशों में से गुज़रे और इसी तरह हम उस दिन भी थोड़ा-सा वो देख रहे थे, जैसे वो जेज़बल ने क्या किया था, नबियों को मरवा दिया था, खुदावंद के लोगों को क्या कर दिया था, उसने सब नबियों को मरवा दिया था और भी यानी इस हमें पुराने अहदनामे में ये मिलता है कि खुदावंद के जो लोग थे, उनको शहीद किया गया था। तो इसलिए ये समंदर जो है, इस चीज़ को पेश करता है कि खुदावंद की खातिर, खुदावंद यीशु मसीह की खातिर उन्होंने जान जो थी वो दी और वो कुर्बान हो गए। तो इसलिए कुर्बान गाह को उसने खुदावंद के बंदा जो यूहन्ना आरफ़ है, उसने वो देखा उस जगह पे। अ, यानी ये जब ये चौथे चैप्टर में वो रोया जो है वो देख रहा है, तो उसने क्या देखा कि शीशे का सा समुंदर है। यानी पहले उसने तख्त देखा और फिर उसने हमने देखा कि वो चिरागदान देखे और अ, अब उसने बात की है कि वो जो फिर हमने देखा कि वो उसने देखा कि वो तख्त के चौगिर्द को क्या थे वो 24 बुजुर्गों के तख्त थे और फिर उसने देखा कि बिजलियां और आवाजें जो 5वीं वर्ष है और 7वीं 6ठी वर्ष जो है उसमें उसने शीशे का सा समंदर जो था वो देखा, है ना? तो और उसने क्या देखा है जो छठी और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा-गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे-पीछे आँखें ही आँखें हैं। 4 जानदार जो हैं फिर उसने देखे, यानी पहले शीशे का समुंदर देखा और फिर उसने गिरदा-गिर्द जो है छठी आयत में कि 4 जानदार जो हैं वो देखे। तो वो ये 4 जानदार जो हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा-सा डिटेल से आगे चल के सीखेंगे, आज नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी काफ़ी मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत सारे मैंने स्टडी जैसे कह लें पास्टरों के मैसेजेस सुनती रही यूट्यूब पे और ऐसे भी।
तो इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत ज्यादा एक जुस्तजू थी, एक वो थी लगन लगी हुई कि जानूं जानूं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे हम डिटेल से बात करेंगे और पूरी इसी पे बात करेंगे, है ना। तो आज हम सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि 4 जानदार जो हैं शरीयत के ज़माने के मुक़द्दसीन को पेश करते हैं। यानी शरीयत जब खुदावंद के बंदा जो मूसा था, है ना? शरीयत उससे शुरू हुई थी और आँखें उनकी हिकमत को पेश करती हैं, जो जो ये जानदार हैं। 4 जानदार जो हैं, उनकी जो उसने 4 जो हैं वो देखी, सूरत जो देखी और उनका इंसान से मगर इंसान उम, तख्त के बीच तख्त के बीच में होना उसकी तख्त से कुर्बत को पेश कर रहा है। यानी ये जो यानी वो तख्त के आगे खड़े हुए हैं, तो ये खुदावंद की जैसे हमने मेरे ख़्याल कल या शायद परसों भी बात की कि जितना ज़्यादा वो पाक है, जितना ज़्यादा वो पाकीज़गी में इंसान हम चल रहे हैं, जो मसीही हैं या खुदावंद के जो पुराने अहद-नाम के मुक़द्दसीन थे, उतना ही वो तख्त के करीब होंगे, उतना ही वो तख्त, ये जो खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, जितना-जितना हम पाकीज़गी में जो है बढ़ रहे हैं, जितना-जितना खुदावंद की तरह पाक बन रहे हैं, यानी इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमारे अंदर से खुदावंद नज़र आए, हमारे अंदर से खुदावंद का जलाल नज़र आए, ग्लोरी नज़र आए, हम ना नज़र आए, खुदावंद का जलाल नज़र आए। तो जैसे-जैसे अ, हमारा जो कह लें हम ख़त्म होते जाएँ और खुदावंद हम में से नज़र आता जाएगा, तो हम उतना ज़्यादा तख्त के करीब होते जाएँगे, तख्त के नज़दीक होते जाएँगे। यानी तो इसलिए ये खुदावंद की कुर्बत को, खुदावंद के जो नज़दीकी है, उसको पेश कर रहे हैं कि वो खुदावंद के तख्त के सामने हैं, खुदावंद के तख्त के करीब हैं, यानी उनकी जो रसाई है वो तख्त के सामने है, तो तख्त के वो कह लें बिल्कुल सामने हैं। यानी हमने देखा कि पहले जो है खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, खुदावंद बाप का, फिर 7 रूहें जो हैं वो हमने देखी और खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद की दुल्हन जो है, यानी जो ओवरकमर लोग हैं वो हमने देखे और उसके बाद ही साथ ही यानी खुदावंद के बंदा ने ये जो 4 जानदार हैं वो देखे हैं, है ना? तो इसलिए ये हम देखते हैं कि वो तख्त के बिल्कुल कह लें कि करीब हैं और इसलिए ये जो खुदावंद के अ जो लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम सीखेंगे। ये खुदावंद का गीत गा रहे हैं। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग इस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और अऊद और से भरे हुए सोने के प्याले थे। ना ये मुकद्दसों की दुआएँ हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी चीज़ें खोलने के लायक है। क्योंकि तूने ही तू ही ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले ज़बान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। तो ये वो लोग हैं पुराने अहदनामे के जो हमारे शरीयत के ज़माने के मुकद्दसीन हैं और हमने सीखा कि जो खुदावंद ने खरीद लिए थे, खून से खरीदे हुए जो थे, हर कबीला में से, हर ज़बान में से, उम्मत में से, कौमों में से जो खुदावंद के खरीदे हुए यीशु मसीह के लहू से, बर्रे के खून से खरीदे हुए लोग थे, ये वो लोग हैं, है ना? और 7वीं जो आयत है उसमें हम देखते हैं कि पहला जानदार बब्बर की मानद और दूसरा जानदार बछड़े की मानित है, तीसरे जानदार का जो चेहरा है इंसान का सा है और चौथा जो है वो जानदार उड़ते हुए उकाब की मानित है। तो ये चेहरे जो हैं जानदारों के, 4 जो जानदार हैं, उनके उसको नज़र आए जो खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ है, उसको नज़र आए, है ना? हर एक का अपना अलग चेहरा था, इनमें से हर एक चेहरा अज़ीम खुदाई सिफ़त को ज़ाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह में ये चारों
खुदा की सिफ़तें मौजूद थी। और ये चारों अंजीलों में खुदावंद की जो खुदावंद यीशु मसीह की जो सिफ़तें हैं, वो पेश की गई हैं। तो हमने यानी अभी जो क्या वाला पढ़ा कि ये खुदावंद की आँखें जो हैं खुदावंद की हिकमत को और कहाँ हमने पढ़ा था कि वो खुदावंद की सिफ़तों को पेश कर रहे हैं। ये खुदावंद के अंदर जो खूबियाँ हैं, उसको पेश कर रहे हैं। यानी ये जो 7 चिरागदान हैं, खुदावंद पाक रूह तो अगर हमारे अंदर भी ये 4 जो खूबियाँ हैं, ये जो 4 जानदार हैं, इनकी खूबियों के बारे में आगे हम थोड़ा-सा सीखेंगे। लेकिन ये सिफ़तें हैं, जो खुदावंद की हैं, इसलिए ये तख्त के करीब हैं। इसलिए ये खुदावंद के कह लें कि बिल्कुल करीब हैं। जो इनमें खूबियाँ पाई जाती हैं, जो इनमें सिफ़तें पाई जाती हैं, यानी वो खुदावंद में हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह में हम सिफ़तें जो थी वो देखते हैं अंजीलों में यानी खुदावंद जो अ, का बंदा जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है जो मत्ती है, उसने अपनी अंजील में खुदावंद यीशु मसीह को एक यहूदा के बब्बर शेर की माने जो है या बादशाह की तरह पेश किया है ना? और जो मरकस है, उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक बर्रे की तरह, बछड़े की तरह जो है पेश किया है और लूका जो है, उसने खुदावंद यीशु मसीह को एक इंसान के या ये यानी खुदा उसका जो प्यार है इंसान के साथ उसको इंसानी उसमें शक्ल में कह लें या पेश किया है जो मरकस है ना? तो इसलिए और यूहन्ना जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह को कहने इस तरह पेश किया है कि वो खुदावंद का क्या है? बेटा है और उसको पाक जो एक पाकीज़गी की एक उसमें सिफ़त है, उस तरह पेश किया है जो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और जिसने ये मुकाशफा जो है वो कह लें लिखा है। तो इसलिए 4 अंजीलों में जो खुदावंद यीशु मसीह की सिफ़तें जो हैं, जो खूबियाँ जो हैं, जो खुदा बाप की हैं, उसको पेश किया है इन अंजीलों में और यही सिफ़तें जो हैं, ये अगर हमारे अंदर हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की मानद तैयार हो रहे हैं। और ये जो सिफ़तें थी, ये इन जो कह लें ये 4 जानदार हैं, ये वो ही सिफ़तें हैं, इनकी वजह से इनमें ये खूबियाँ थी कि ये खुदावंद के तख्त के सामने हैं या तख्त के करीब हैं। तो ये हम आगे चल के सीखेंगे, आज हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर आगे चल के इसको ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि हम खोल के बयान करें। तो इसलिए ये सिफ़तें जो हैं, आज मैं सिर्फ़ इसी पे बात करूँगी कि ये 4 जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, 4 जो शक्लें हैं, जो नज़र आ रही हैं इंसान की और यानी ये खुदावंद की मोहब्बत को पेश करते हैं इंसानों के साथ कह लें, है ना? और जो बछड़ा है, ये जो नज़र आ रहा है हमें, है ना? यानी बर्रा जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह जो एक कह लें उसने कुर्बानी दी, उसने अपने बदन को कुर्बान की कर दिया। वो एक सिफ़त है कि जिस तरह खुदावंद ने कुर्बानी दी अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, है ना? वो इस चीज़ को पेश कर रहा है, ये खुदावंद की सिफ़त है। फिर मत्ती ने पेश किया कि ये यहूदा का बब्बर शेर है ना? यानी खुदावंद की बादशाही को पेश करता है और खुदावंद यानी और यूहन्ना जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह को पाक या पाकीज़गी के तौर पे पेश किया। तो यही 4 जो सिफ़तें हैं, वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये उकाब जो है उकाब जो है वो पाकीज़गी को पेश करता है। तो इसलिए ये 4 सिफ़तें खुदावंद को जो थी, वो इनके अंदर थी इसलिए ये खुदावंद के करीब हैं। ये खुदावंद के तख्त के नज़दीक हैं। तो ये 4 सिफ़तें और ज़्यादा डिटेल से हम आगे चल के कल जो है इन पे बात करेंगे। कल तो नहीं मंडे को बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये हमने थोड़ी-थोड़ी इसके बारे में 4 जानदारों के बारे में आज सीखा और शीशे के समुंदर के बारे में हमने सीखा
कि ये किस चीज को पेश करता है ना। समंदर जो है यानी या शीशा जो है या आग जो है वो दुखों को, तकलीफों को, आजमाइशों को और कुर्बानियों को कह लें कि पेश करता है। आज हमने इस पे थोड़ी सी बात की है ना। और 4 जानदारों के बारे में कि वो तख्त के सामने हैं। और ये धनक जो है उसका क्या मतलब है, यानी ये जो खुदावंद के तख्त के ऊपर है नजर आ रही, ये किस चीज को पेश करती है, यानी खुदावंद के जो वादे उसने हमारे साथ किए हुए हैं जमीन हम सब के साथ, ये उस चीज को पेश करता है कि खुदावंद अपने वादों को पूरा करने में जो है वो वफादार है, वो सच्चा है, वो कभी अपने वादों को तोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। तो इसलिए ये धनक जो है, ये रेनबो जो है, ये 7 जो नजर आ रहे हैं हमें, ये इस चीज को पेश करता है। और बिजलियां और गरजों की जो आवाजें थी उसने यूहन्ना रफ ने बात की, वो इस चीज को पेश करती हैं कि खुदावंद जो है वो कुदरत वाला, ताकत वाला और रास्त खुदा है, यानी पाक खुदा है, पवित्र खुदा है। वो अदालत करता है रास्ती के साथ, यानी और 7 जो चिरागदान हैं वो खुदावंद की 7 रूहें हैं और खुदावंद पाक रूह है, उस चीज को पेश करता है। और ये 4 जो जानदार हैं उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से हम आगे चल के सीखेंगे। बहरहाल हमने ये सीखा कि ये जो तख्त के आगे जो हैं वो शरीयत के ज़माना के मुक़द्दसीन हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं, जो कि क्या थे, हर कबीले में से, अहले ज़ुबान में से, उम्मत में से, कौम में से खुदावंद यीशु मसीह ने खरीद लिए हुए थे, अपने खून दे के खरीद लिए हुए लोग थे। ये वो लोग हैं जो तख्त के आगे जो हैं नजर आ रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और फजल दे कि हम उस तरह से पाक बने, उस तरह से हम खत्म होते जाएं, हम जैसे कह लें मरते जाएं और खुदावंद जो है हम में से जिंदा होता जाए। जिस तरह हम पानी का बपतिस्मा जब लेते हैं तो वो किस चीज को पेश करता है कि अब हम जिंदा न रहे बल्कि अब में मसीह जिंदा हो गया। या हम इसको इस तरह भी लेते हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, तो अब हम जो हैं वो खत्म हो गए हैं, हम जो हैं वो जिंदा नहीं है, अब हमारे अंदर मसीह जिंदा हो गया है। तो अगर हम इस तरह से जिंदगियां गुजारे हैं पाकीज़गी में, पवित्रताई में, होलीनेस में, तो हम तख्त के जैसे कह लें पाकीज़गी में उस तरह से बढ़ रहे हैं। तो जैसे-जैसे हमारी पाकीज़गी बढ़ती जाएगी उस तरह हम तख्त के करीब होते जाएंगे। या अगर हम इनकी तरह ओवरकमर होंगे दुल्हन की मानिद, सहून के जो लोग हैं उनकी मानिद, तो इसका मतलब है कि फिर हम तख्त के ऊपर बैठने के लायक जो है वो बन जाएंगे। कि खुदा यीशु मसीह ने जो वादा किया है कि अगर तुम गालिब आओ तो वो क्या करेगा, हमें हक बख्शेगा कि हम भी उसके साथ तख्त पे उसके साथ बैठे, है ना। तो इसलिए ये अब मेरे ऊपर, आपके ऊपर जैसे कह लें कि डिपेंड करता है कि हम खुदावंद के कितना करीब जाना चाहते हैं। अगर हमारी रूह बच गई है, हम मसीह में आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जी बस रूह बच गई है तो चलो बस इतना ही बहुत है अगदी झील जितना नहीं पड़ेंगे, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी रूह बच गई है तो ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद के उस कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं कि हम उसके साथ बैठें, खुदावंद ने जो हमारी कॉलिंग असल में जो नए हम अहदनामे के मसीही हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें किस लिए बुलाया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जहां मैं हूँ वहां तुम भी हो। और खुदावंद यीशु मसीह कहाँ है? तख्त के ऊपर। तो हमारी असल में कॉलिंग जो है, हमारी बुलाहट जो है वो तख्त के ऊपर की है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन इस तरह पाक बन रहे हैं। जैसा कि हमने 7 रूहों के बारे में सीखा कि ये जो 7 रूहें थी जिस तरह खुदा यीशु मसीह के ऊपर ठहरी हुई थी, उसी तरह हमारे ऊपर भी ठहरी हुई हैं। तो अगर हम उनको इजाज़त देंगे कि हमें वो खुदा यीशु मसीह की मानिद बनाएँ, या हम यीशु की मानिद
बनते जाएं, पवित्र होते जाएं, पाक होते जाएं, तो वो फिर हमें उस तख्त तक पहुंचाएंगी। तो हम कोशिश करें कि इन 7 रूहों को इजाज़त दें, है ना? खुदा उनकी हिकमत की रूह को, काउंसलिंग की रूह को, इल्म की रूह को, कुदरत की, खुदा उनके डर और खौफ की रूह को, समझ की रूह को, है ना? खुदा उनके जो पावर की रूह है, उसको इजाज़त दें कि हमें यीशु की मानद बनाए। तो ये हमारे मैं कहूँगी कि हम कई दफ़ा इजाज़त नहीं देते कि हम अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं। तो इसलिए खुदावंद आप सबको और मुझे भी फ़ज़ल दे कि हम अपने बदनों को पेश करें, जैसा कि रोमियो के ख़त में में उसके 12 चैप्टर में लिखा हुआ है कि अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए, देने के लिए पेश करें, है ना? कि हम अब हम ज़िंदा नहीं रहे बल्कि मसीह हम में ज़िंदा हो गया। तो अगर हम इस तरह अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं, रोज़ ही अपने आप को पवित्र बनाने के लिए पेश करते हैं, अपने बदनों को पाक बनने की कोशिश करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं, हमें बनाता तो खुदा उनका पाक रूह है। तो फिर हम उस तख्त तक हमारी रसाई जो है वो होगी। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी ये फ़ज़ल दे, बरकत दे और तैयार करें। God bless you. Back to Asaf. जी, आसफ हैं हमारे साथ? नहीं, उनका मेशल डिस्कनेक्ट हो गया। ओके जी, जी वफ़ा मेरा हाल आप फिर आगे लीड करें। ओके, खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमसे कलाम किया। हम खुदावंद से इल्तिजा करेंगे कि खुदावंद इस आवाज को जो है और इस कलाम के बीज को जो आज हमारे दिलों में बोया गया है, हम इस पे अमल करने वाले हैं और खुदावंद के खौफ में रहकर अपनी जिंदगियों को गुजारना शुरू करें। और हम लास्ट प्रेयर जो है वो सिस्टर सुरैया के साथ मिलके करेंगे इस सारे कलाम के लिए। और अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो काइंडली वो बता दे ताकि उसके लिए हम सब मिलकर करें। सिस्टर सुरैया। हेलो गॉड ब्लेस। जी, किसी की रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर बताए श्रेया को। और मेरा तो ख्याल है वैसे श्रेया को पता ही है ना कि भाई फ्राइडे के लिए भी प्रेयर करनी है ना, तो खुदावंद उनको जी किसी ने कुछ कहना तो कह सकते हैं। सिस्टर जी, मेरी स्पेशल प्रेयर के लिए आजकल जब से मैं बीमार रही हूँ तो मेरी प्रेयर बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मतलब मैं अपनी सीक्वेंस में नहीं आ पा रही। मैं इसके लिए खुदावंद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब के साथ मिलके। और सोनिया के बेटे के लिए सुरैया, सैमुअल के लिए उसको बुखार है। ओके सिस्टर जी मेरे लिए भी मैंने लिख लिया सिस्टर जी आपका। ओके। चले आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बे सेरे शिंदर वाले कातरिया मेरे नाल नाल रंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यसु मेरे नाल नाल रंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। Yes, Lord. Oh, rebe zere shindar bara ziri. Oh, rebe ziri shindar bara ziri. Dior bo zere shindar bara ziri. Oh, rebe ziri shindar bara dior dior bo zere shindar bara ziri. Zore bere ziri shindar bara.
Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus, wonderful Lord. खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी, तेरा शुक्र तेरी तारीफ है बाप के बाद तूने हमें यहाँ पर मुहैया किया, तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, तूने हमें Yes, Lord. अपने मुतलाशी किया और अपने शिनवा किया। दावन तूने हमें अपनी आवाज को सुनने के लिए दावन तैयार किया। दावन तूने हमें दावन अपने दीदार के लिए, अपनी आवाज के लिए, दावन दावन अपने सिजदे के लिए, दावन अपनी प्रस्तिश के लिए, दावन अपनी इबादत के लिए तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। बाप हम तेरा ही शुक्र अदा करते हैं जलाली पिता रब्बुल फाज इस्राएल के कदूस यहूदा के बब्बर। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और इस्ताश करते हैं सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद है। दावन नाम बनाम है बाप तेरे शुक्र गुजार है जिंदगी के लिए, और है बाप खास तौर पर तेरी आवाज के लिए दावन जो आज हम ने तेरे आवाज को दावन तेरी बंदी के वसीला से रूह की रहनुमाई से तेरे कलाम में से दावन सुना है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बंदी की सारी काविश के लिए, तेरी बंदी की सारी मेहनत के लिए, तेरी बंदी की सारी मोहब्बत के लिए, दावन उसके सारे दावन इस दावन प्यार के लिए, दावन जो दावन इस सारी मेहनत के लिए, दावन जो तेरी बंदी दावन तेरे डर तेरे खौफ में और तुझसे मोहब्बत रखते हुए तेरा खुदावन करती है। दावन ए बाप तेरे शुक्र गुजार है, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन तो अपनी बंदी के साथ और इसी तरह अपना मसा अपनी हजूरी खुदावन अपने फरिश्ते अपनी बंदी को गिरद रखना बाप, दावन तेरा पाक रूह हमेशा उसकी मदद रहनुमाई करे, दावन तेरे फरिश्ते हमेशा उसको दावन तकवीयत दे, तेरे फरिश्ते हमेशा दावन उसको संभाले, तेरे फरिश्ते हमेशा दावन उसको जोर दे। दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र तेरी तारीफ अपनी बंदी के साथ होना, दावन तू शाहीन के साथ हो बाप, दावन तू उसको तकवीयत दे, तू उसको जोर दे, दावन मस्सा कर दावन और दावन दिलेर कर बाप यीशु के नाम से बाप, ताकि बाप तेरी बेटी दावन ऐसे ही तेरी आवाज को हम तक पहुंचाती रहे बाप, तेरा शुक्र गुजार है, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। दावन अपना मस्सा अपनी बंदी पर बढ़ाता चला जा, अपना जलाल अपनी हुजूरी पर बढ़ाता चला जा यीशु मसीह के नाम से बाप, तेरे ही शुक्र गुजार हम सारा जलाल दावन तेरी बंदी की जिंदगी से उसकी खिदमत से बाप, दावन सारे प्यार के लिए दावन हम सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह ऐ बाप आसमानी जो आज तूने आवाज अपनी बंदी में से होकर आई तो हमसे बोला है कि बाप खुदावन हमने तेरे तख्त के दावन ऊपर आना है, हमने तेरे पास आना है, दावन हमने ऐ बाप बाहर नहीं, बाप सहन में नहीं, बाहर नहीं, आग पीछे हालेलुया हालेलुया तेरे संदरा संति क्रिया करते हमें रोज बरोज बाप माने तैयार होना है, हमें उस दुल्हन की माने और रास्ता होना है जिसे तू लेने को आ रहा है। यस लॉर्ड यस यस तेरा संदरा शुक्रिया का शेरे और शेरे बेरे 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 संदरा शुक्रिया का और Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप, खुदा तेरे इस बड़े मंसूबे के लिए खुदा यीशु के तूने हमें तैयार किया, खुदा तू हमें तैयार कर है, खुदा तेरी पाक रूह के लिए खुदा हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदा कि तूने खुदा वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि एक मददगार बख्शूंगा। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस मददगार के लिए खुदा जो हमें यीशु तेरी मानित बना रहा है, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। यस लॉर्ड, खुदा वो तख्त की तरफ हमें लेके जा रहा है, खुदा वो उस तख्त के लिए हमें तैयार कर रहा है। पाक रूह हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से। खुदा एक पर खुदा आज तेरा खास मसा ठहर जाए, तेरी स्पेशल अनाइंटिंग
हमारे ऊपर ठहर जाए खुदा खुदा, ताकि हम उस फर्माबरदारी में, उस ताबेदारी में चल सके खुदा, जिसके लिए तूने हमें बुलाया, जिसके लिए तूने दुनिया से, तूने लोगों में से, तूने कबीलों में से, तूने उम्मतों में से हमें अलग किया यीशु, खून दे के खरीद लिया इब्लीस से, शैतान से, ताकि उसका कोई जोर हमारे ऊपर चलने ना पाए खुदा, उसका कोई इख्तियार ना हो हमारे ऊपर, यस्सु के नाम से खुदा खुदा। जितनी भी बदी की कुव्वतें इस ग्रुप के खिलाफ, एक एक बंदे के खिलाफ काम कर रही हैं, यस्सु के नाम से उसके सारे इख्तियार को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ, खत्म कर देती हूँ यस्सु के नाम से। किसी भी तरीके से वो इस जितनी भी रूहें, खुदा तेरा बंदा यूहन्ना अपने खत में कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया बाप से कि जो रूहें तूने मुझे दी हैं उनको कोई भी छीन नहीं सकता। खुदा आज तेरा वादा वो इस ग्रुप के लिए भी मानती कि इस ग्रुप में से एक भी रूह को शैतान किसी भी तरीके से छीनने ना पाए, किसी भी तरीके से वो वापस ना लेके जाने पाए, किसी भी तरीके से वो तुझसे दूर ना लेके जाए। यीशु के नाम से खुदा खुदा एक एक को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरे कुव्वत वाले, तेरे ताकत वाले लहू में छुपा देती हूँ। किसी भी तरह से इब्लीस का कोई वार हमारी जिंदगियों के ऊपर चलने ना पाए। यीशु के नाम से खुदा एक एक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। सबके घरों को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। कोई भी अबलीसी कुव्वत खुदा खुदा हमारे घरों में, हमारे जिंदगियों में यीशु के नाम से कोई भी अपना मंसूबा उसका कामयाब ना होने पाए खुदा, बल्कि तेरे मंसूबे जो है वो हमारी जिंदगियों में कामयाब हो। खुदा तू फतेहमंद है, तुझ में रहते हुए हम भी जोरावर हैं, हम भी फतेहमंद हैं खुदा। यीशु के नाम से एक एक को छूना, एक एक को बरकत देना खुदा खुदा। जहाँ कहीं अबलीस ने खुदा खुदा हमारे फाइनेंस को जकड़ा हुआ है, हमारे बदनों को जकड़ा हुआ है, उसने ऐसी नेगेटिव सोचे लेके आता है खुदा खुदा, डिप्रेशन की ऐसी कोई किसी में फंसा हुआ है खुदा खुदा। यस्सु के नाम से आज आजादी को, बहाली को मांगती हूँ यस्सु के नाम से एक एक के लिए। खुदा हमारी जिंदगियों में ब्रेक थ्रू आ जाए यस्सु के नाम से खुदा खुदा। कोई ऐसी बीमारी है, कोई लालच बीमारियां हैं, वो लानती बीमारियां हैं खुदा खुदा, किसी भी तरीके से वो हमारे घरों में, हमारी बदनों में काम कर रही हैं यस्सु के नाम से। आज उन सारी लानती बीमारियों को खुदा यस्सु के नाम से अपने घरों के अंदर से, अपने बदनों के अंदर से यस्सु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। और खुदा यस्सु तेरे लहू को लगा देती हूँ, तेरे पाक पवित्र, तेरे शिफा बख्श लहू को लगा देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा खुदा। कहीं भी कोई दर्दे हैं खुदा, किसी भी तरीके से, किसी कोई आंखों की बीमारी है, चेस्ट की बीमारी है खुदा खुदा, खुदा कोई कैंसर के ऐसे असरात हैं खुदा खुदा, यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए। टीबी है खुदा खुदा, यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए खुदा, उस जड़ से अपने बदनों से निकाल देती हूँ यस्सु के नाम से। उसका सारा असर हमारे बदनों के अंदर से खत्म हो जाए। कोई खुदा खुदा नस्ली बीमारियां हैं खुदा जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं यस्सु के नाम से खुदा खुदा, शुगर की है, हाई ब्लड प्रेशर की है खुदा खुदा, और यस्सु के नाम से खुदा हमारे बदनों से जाती रहे खुदा खुदा, उसका असर, उसके सारे लिंक ब्रेक कर देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। यूट्रस की प्रॉब्लम है खुदा, बैक पेन है, यस्सु के नाम से वो जाती रहे खुदा हमारे बदनों के अंदर से खुदा। बवासीर की प्रॉब्लम है यस्सु के नाम से, इस बीमारी को जड़ से निकाल के फेंक देती हूँ, उसकी सारी जड़ें काट देती हूँ यस्सु के नाम से अपने बदनों के अंदर से खुदा। यस्सु के नाम से खुदा तेरा शिफा बख्श खून हमारी रग रग में, नस नस में दौड़ जाए खुदा खुदा, और वो सारी बीमारी का जो असर है हमारे बदनों के अंदर से खत्म हो जाए खुदा। यस्सु के नाम से आजादी है, बहाली है, खुशहाली है, शिफा है हमारे बदनों के अंदर यस्सु के नाम से खुदा। आज खास तौर पे खुदा भाई फ्रेडी को खुदा मैं तेरी हजूरी में लेके आती हूँ, तेरे फजल वाले तख्त के सामने लेके आती हूँ खुदा। अपने बंदे को छू यस्सु के नाम से, कोई भी बीमारी है, कोई भी असर है खुदा खुदा, तेरे यस्सु नाम से वो सारा असर कैंसल कर देती हूँ। सारी बीमारी को यस्सु के नाम से खत्म होने का हुक्म देती हूँ। यस्सु के नाम से तेरा बंदा सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, शिफा पाए खुदा खुदा। यस्सु के नाम से खुदा खुदा, सर से लेके पांव के तलवे तक खुदा तेरा
शफा बख्श खून तेरे बंदे के नस नस में रग रग में दौड़ जाए खुदा, और तेरा बंदा मुकम्मल शिफा पाए खुदा, और खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे खुदा, हम सब मिलकर खुदा कि तेरे बंदा ने खुदा तेरे हजूरी से, तेरे लहू से शिफा पाई है। यस्सु के नाम से खुदा अपने बंदा को मुकम्मल शिफा बख्श खुदा, यस्सु के नाम से सैमुअल को, सोनिया के बेटे को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। सारा बीमारी का असर जो है, बुखार है, गला खराब है, जुकाम है, यस्सु के नाम से इन सारी खुदा बीमारी के असर को उसके बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। तेरा बच्चा खुदा मुकम्मल शिफा को रिसीव करे यस्सु के नाम से खुदा। इसी तौर से सिस्टर अमनदीप को खुदा तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा, उसके घर को, उसके हस्बैंड को, उसके बेटों को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। एक एक को छू खुदा तेरा नजात उनकी जिंदगी में आए, तेरा मुक्ति वाला जो प्लान है खुदा उनकी जिंदगी में पूरा हो यस्सु के नाम से। तेरी बेटी मुकम्मल शिफा को रिसीव करे, हर किस्म की बीमारी उसके बदन से जाती रहे खुदा हाई ब्लड प्रेशर को खुदा उसके बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से। बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो यस्सु के नाम से खुदा तेरी बेटी मुकम्मल शिफा को रिसीव करे खुदा। तू अपनी बेटी की जिंदगी में काम कर खुदा यस्सु के नाम से, जलाली काम कर खुदा, तेरी कुदरत वाली रूह खुदा उसकी जिंदगी में काम करे खुदा यस्सु के नाम से। हिकमत वाली रूह उसकी जिंदगी में काम करे, अपनी बेटी के ईमान को और ज्यादा बढ़ा खुदा यस्सु के नाम से खुदा तू इसी तरह से खुदा भाई नाज़क को, भाभी को छू खुदा यस्सु के नाम से। कोई भी कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके से खुदा तेरे बंदे खुदा किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, यस्सु के नाम से आज को खुदा निजात को, शिफा को खुदा रिसीव करें, और खुदा मुकम्मल तौर पे खुदा तेरी आजादी को, बहाली को यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में मांगती हूँ यस्सु के नाम से। खुदा तेरे बंदों की फैमिली को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। अपनी फैमिली को खुदा यूनाइट कर खुदा यस्सु के नाम से खुदा तेरे रूह जो है उनकी जिंदगी में काम करे, मुदाखलत करे खुदा कहीं पे भी कोई खुदा दूरियां आ गई हैं, कहीं जुदाई आ गई है, यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए। काट देती हूँ उस सारी जुदाई के असर को खुदा, और खुदा बच्चे खुदा इस फैमिली को यूनाइट कर देती हूँ यस्सु के खून से खुदा धो के पाक और साफ कर देती हूँ। कहीं पे भी कोई ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से खुदा ऐसी ये प्रॉब्लम आ गई है, यस्सु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम यस्सु के नाम से हील हो, रिश्तों में शफा आए यस्सु के नाम से खुदा यस्सु के नाम से खुदा। भाभी नीलम को खुदा तेरे यस्सु लहू में छुपा देती हूँ। जो भी बाजू में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, खुदा दर्द है, यस्सु के नाम से जाती रहे खुदा। तेरी बेटी मुकम्मल शिफा को रिसीव करे, और खुदा यस्सु तू अपनी बेटी की जिंदगी में खुदा काम कर, और खुदा और ज्यादा जलाली काम कर खुदा यस्सु के नाम से खुदा। वो अपनी बेटी के ऊपर हिकमत, दानिश और फहम की रूह को मांगती हूँ खुदा, ताकि वो इस फैमिली को खुदा तुझ में जोड़ने का बाइस बने खुदा यस्सु के नाम से। खुदा बरकत आए, बहाली आए, आजादी आए यस्सु के नाम से खुदा। सिस्टर महेंद्र को खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ। अपनी बेटी को सर से लेके पांव के तलवे तक छू खुदा हर किस्म की दर्दें, बीमारी खुदा तेरी बेटी की जिंदगी में जाती रहे, और तेरी बेटी की फैमिली जो है, बच्चों को खुदा, हस्बैंड को खुदा यस्सु के नाम से खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान यूनाइट हो ये फैमिली यस्सु के नाम से खुदा। अबलीस का कोई भी वार इनकी जिंदगी में चलने ना पाए खुदा। खास तौर पे रवि को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। मुमताज के कारोबार को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। सारी रुकावटें दूर हों यस्सु के नाम से खुदा। इसी तौर से सिस्टर राज को, उसकी फैमिली को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। सबा को खुदा, अनिल को खुदा, अनाया को, अरुण को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। तेरे जलाली काम हो इनकी जिंदगी में खुदा। तू और ज्यादा अपनी बेटी को खुदा, अरुण को, अनाया को खुदा अपने में मजबूत कर खुदा। ये बच्चों की जिंदगी में
खुदाम तू जलाल पाए खुदाम, ये तेरे लिए और ज्यादा जलाली काम करें खुदाम, ये यस्सु तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदाम, इनके बदन खुदाम। सनिया को खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदाम। जो भी तेरी बेटी की जिंदगी में कहीं पे भी कोई रुकावट आई है खुदाम, खुदा यस्सु के नाम से खुदाम रूहानी तौर पे अपनी बेटी को मजबूत कर खुदाम। खुदा तेरी कुव्वत, तेरी ताकत खुदाम तेरी बेटी की जिंदगी में आ जाए खुदाम। ईमान को और ज्यादा मजबूत कर, हिकमत, दानिश, फहम खुदाम तेरी कुदरत की रूह, खुदाम तेरे डर और खौफ की रूह खुदाम, खुदाम तेरी अकल, तेरी समझ की रूह को यस्सु के नाम से खुदाम तेरी बेटी की जिंदगी में के नाम से मुकम्मल शिफा आए। तेरी बेटी को खुदाम, सैमुअल, सुलेमान को, मोजिस को खुदाम, खुदा विक्की को यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। अपनी बेटी को और इसकी फैमिली को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदाम। और ज्यादा ये तेरे करीब आए खुदाम, और ज्यादा तुझ में गहरे होते जाएं खुदाम। इसी तौर से काके को, सुरैया को, सारा को, समर को खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम, खुदा अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदाम। तुझ में और ज्यादा बढ़ते जाएं खुदाम, तुझ में व्यवस्थ होते जाएं खुदाम। खुदा ये जिंदा ना रहें, बल्कि तू इनकी जिंदगियों में जिंदा हो जा और तू अपने जलाली जो काम है इनकी जिंदगी में कर यस्सु के नाम से खुदाम। इसी तौर से वफा को, उम्मीद को खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम। यस्सु तू अपने बेटे और बेटी को बड़ी अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। नेता की फैमिली को खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदाम। यस्सु के नाम से खुदाम ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदाम, खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम। कहीं पे भी कोई कमजोरी है, कहीं पे कोई बीमार है खुदाम, कहीं कोई इब्लीस के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, आज बहाली है, आजादी है, शिफा है खुदाम। सरफीन को, आसफ को और रोशनी को खुदाम, खुदा नैयर को खुदाम, उजाला को खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम। अपने बच्चों की जिंदगी में जलाली काम कर खुदाम। जो भी काम रुके हुए हैं खुदाम यस्सु के नाम से वो बहाली आ जाए उन कामों में यस्सु के नाम से। आज खुदाम तेरा जलाल खुदाम इस ग्रुप में मांगती हूँ खुदा यस्सु, हम ना रहें जिंदा, बल्कि तू हमारी जिंदगी में जिंदा हो जा। तू हमारी जिंदगी में जलाली काम कर यस्सु के नाम से। एक एक को टच कर, एक एक को छू खुदा। खुदा यस्सु तेरे फरिश्ते खुदा हमारी हिफाजत करते रहे खुदा। तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे जोरावर फरिश्तों को एक एक के चुगिर्द नाम बनाम मांग लेती हूँ खुदा। वो हमारी तरफ से हो के जंग करे यस्सु के नाम से खुदा। यस्सु तू हमारी जिंदगियों में खुदा वो जलाली काम कर, वो अपनी कामल, पवित्र, परफेक्ट विल को पूरा कर खुदा। खुदा जिसके लिए तूने हमें जमीन पे भेजा कि हम वो नेक काम करें जो बाप ने हमारे लिए मुकर्रर किए हो खुदा। खुदा हम एक भी जिस तरह खुदा तूने अपनी बाप की सारी पूरी मर्जी को पूरा किया था खुदा, इसी तौर से हमारी जिंदगियों में खुदा की वो परफेक्ट विल जो है, जो कामिल पवित्र मर्जी है, वो हमारी जिंदगियों में पूरा हो। इब्लीस का कोई भी वार हमारे ऊपर चलने ना पाए यस्सु के नाम से। एक एक को खुदा तो गहरा भारी फजल बख्श दे खुदा, ताकि खुदा हम फतह पे फतह हासिल करते जाए और इब्लीस के सर को कुचलते जाए। रोज एक एक पल में खुदा इब्लीस के सर को हम कुचलते जाए खुदा यस्सु के नाम से। खुदा उसका जोर हमारे किसी भी इस ग्रुप मेंबर पे खुदा चलने ना पाए यस्सु के नाम से। जो भी रुकावटें हैं, किसी भी वजह से कोई भी इस मीटिंग में नहीं आ सकता, यस्सु के नाम से वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं। और खुदा तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदा इस तेरी मीटिंग में, इस तरह जो कि तेरा घर है, जो कि तेरी खुदा पाकरू तेरे तूने इस ग्रुप को शुरू किया और खुदा तू इस ग्रुप को चला रहा है, तेरे इस हुजूरी में आ सके खुदा। इब्लीस का किसी भी तरीके से कोई रुकावटें पैदा कर रहा है कि वो तेरी इस हुजूरी में ना आ सके। तेरे इस मसा को जो तू रोज हमें जोर देने के लिए, ताकत देने के लिए खुदावंद इस ग्रुप में आता है, और ताकि हम रोज रोज फतह पे फतह हासिल करते जाएं खुदावंद, उसको वो सब भी हासिल कर सकें खुदा, ताकि हम जब तू आए तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हों खुदावंद। हमारे बदनों के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना रहे यस्सु के नाम से। जब तू यस्सु आए आसमान पे, बादलों पे, तो हम हवा में उड़ कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों और तेरे साथ उस तख्त पर जाने वाले हों यस्सु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही हम सब
सब बहन भाई एक रूम में बंद के खुदा तुझसे मांगते और पा लेते हैं, और हमारा ईमान है कि जो भी कुछ हमने तुझसे मांगा है खुदा तूने हमें वो दे दिया है, यस्सु के नाम से आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह तू आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन जी। खुदा की हुजूरी को मैंने आज बड़े गहरे तौर पे खुदा का मसा हमारे ऊपर ठहरा हुआ था, और खुदा की जो एक जैसे कह लें एक रोशनी जो है, जो वाइट रोशनी है, जलाली एक, वो मैंने इस तरह देखी है अपने ग्रुप के ऊपर, और मैंने देखा है कि खुदा ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। और जब मैं बीमारियों के लिए दुआ कर रही थी, बीमारों के लिए, तो मैंने देखा है कि खुदावंद ने किसी के कोई जो पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई लीवर की, मैदे की प्रॉब्लम है, तो खुदावंद ने उसको टच किया है, खुदावंद ने उसको हील किया है। और जो किसी के घुटने में दर्द हो रही थी, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ मैंने ऐसे देखा है जैसे खुदावंद की जो रोशनी है, जो तेज जो एक रोशनी है, वो मैंने देखी है कि खुदावंद ने उसको टच किया है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने उसको शिफा दी है, और खुदावंद ने जो हमारे ऊपर मसा है, नया जो एक जोर है खुदावंद ने हमें दिया है, ताकि हम इब्लीस के सर को अपनी जिंदगियों से कुचलते रहें। और जब मैं सनिया के लिए प्रेयर कर रही थी, तो मैंने खुदावंद की जो एक मसा है येलो कलर का, वो मैंने देखा है कि खुदावंद ने उसके ऊपर उंडेला है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने सनिया के ऊपर जो अपना जोर है, अपनी ताकत जो है, जो कहीं पे वो रूहानी तौर पे कमजोर हो गई है, तो खुदावंद ने अपना मसा जो है उसके ऊपर उंडेला है। और सिस्टर अमनदीप के लिए जब मैं दुआ कर रही थी, तो मैंने इस तरह देखा कि उसके घर के जो गिर्द जो खुदावंद के फरिश्ते हैं, उनको मैंने देखा है कि वो खड़े हैं, और वो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, और इनकी तरफ से होके कह लें जंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा का शुक्र हो। और भी किसी को खुदावंद ने टच किया है, या कुछ आपने कोई देखा है, कोई रोया देखी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। खुदावंद ने आपको किसी तरीके से टच किया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके जी। नहीं किया, चलें ठीक है फिर। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर। सिस्टर जी, जब रोटी और पानी के लिए दुआ कर रहे थे ना, तब मेरी आंखों से आंसू आ गए, और रोज की तरह ऐसे झटके से लगे जब लास्ट प्रेयर भी कर रहे थे तब। प्रेज गॉड, प्रेज द प्रेज लॉर्ड। गॉड। जी सिस्टर, खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े अजीब अजीब काम कर रहा है और करेगा, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। जी, किसी और ने कुछ अगर जी सनिया आप कुछ कहने लगे थे? जी प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज खुदावंद के कलाम से मतलब आज बहुत कुछ सीखा, और मतलब वो मैंने उससे जब कलाम को आप सुना रहे थे, तो मैं तभी खुदावंद के मसा को और खुदावंद की जो बरकत को महसूस कर रही थी। मैंने उस पर बहुत मसा फील किया, और अभी लास्ट प्रेयर में भी मैंने वाकई अपने आप में देखा खुदावंद ने मुझे जैसे ब्लेस किया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ यीशु के नाम में। प्रेज आमीन। गॉड। आमीन, आमीन जी। जी वफा आप कुछ कहना चाह रही है? सुरैया शायद में है। आपने वो लीवर के लिए किया ना, तो सबा एक हफ्ते से मुझे बता रही थी कि इसके ना स्वेलिंग हो जाती है, तो अब इसने ऑयली चीजें खाना छोड़ी है, तो इसका मतलब स्वेलिंग खत्म होगी। तो मैंने इसको कहा कि मे बी लीवर का प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए काफी देर से प्रेयर कर रही थी। तो अभी मैं कर रही थी प्रेयर इसके लिए भी, जब आपने कहा बीमारों के लिए भी,
और अभी फिर जब आपने कहा कि किसी के लीवर का कोई वो है, तो मैंने मतलब दुआ की है, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इसके साथ कलाम किया है कि इसका लीवर का अगर कोई प्रॉब्लम था तो खुदावंद ने इसको हील किया है। ये बस अब ईमान से रिसीव करें। आमीन आमीन। जी जी जरूर। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी श्रेया, आपने कुछ कहना है? आपका नेट खराब हो रहा था, आवाज। ओके जी, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। उसने वो जलाली है, और वो जब आता है तो जलाली काम होते हैं। वो ये साबित करता है अपने हजूरी को, कह लें कि वो जलाली काम कर रहा है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड। जिनको नहीं भी अभी फील हुआ कि उनको खुदा ने टच किया है, खुदावंद ने उनको भी छुआ है, तो आप जरूर ईमान से उसको रिसीव करें, क्योंकि जब खुदावंद आता है तो मौजे होते हैं, है ना। तो जरूर आप को शिफा जो है खुदावंद ने दे दी है, या परेशानी जो है आपकी दूर कर दी है। ईमान रखें खुदावंद पे, ठीक है। तो जी, हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।